हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इतना सही वाला मौसम हो रहा है ना, आई जस्ट कांट इवन टेल यू। आई विश लाइक यू कैन फील इट। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि व्हाट इज़ द योगा रूटीन दैट आई एम डूइंग फॉर माई ये नेक पेन एंड माई बैक पेन। तो वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑल्सो मेरे को बाहर भी जाना है आज, तो आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी। सो दैट्स अ वेरी रैंडम डे इन माई लाइफ विच इज़ full of a lot of things. So let's get started with the day. I just got up. अभी बज रहा है 7 सुबह का, सुबह का 7 एंड या डुगू के भी क्लासेस हैं, सो आई जस्ट गेट हिम रेडी, गिव हिम सम मिल्क एंड सम ब्रेकफास्ट एंड देन मैं अपने काम करूँगी. Alright you guys, we are in my bathroom. I'm going to do my mini cleanup, a quick cleanup, and this is good अगर आपको you just want to clear out your skin. I have so much of build up on my face. मेरे पूरे माथे पे, let me just show you up close. Can you see छोटे छोटे दाने काले काले से दिख रहे हैं ये, and this area itself, like it's a lot of build up on my face. And ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने शायद क्लीन अप काफ़ी टाइम से किया भी नहीं है, सो आई रियली नीड इट. एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू गाइज दैट दिस पोर्शन ऑफ दिस वीडियो is actually sponsored by Plum Goodness and their green tea range, which I absolutely love. This is an amazing product. अगर आपकी oily या combination skin है, बहुत अच्छे से काम करते हैं. In fact, इनका जो night clarity gel है, this one right here, My sister just loves it. मैं already उसको I think 2 टब्स इसके दे चुकी हूँ and she just loves it. And I think ये मेरे को थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए. ऐसा लग रहा है मेरी कल की निकल आई है. Better. Okay. So what I'm going to do is I'm going to start off with Plum का Gentle Revival Face Scrub. This is how the bottle looks like. एंड जो ये रूटीन मैं भी शेयर करने वाली हूँ ना, ये बहुत ही सिंपल है एंड एनीबडी कैन डू इट. वेडिंग सीजन है एंड ऑब्वियसली सैलो फिर से हम जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ द कोरोना सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. सो इट्स बेटर कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें घर पे कर लो एंड यू डोंट हैव टू विजिट अ सैलून. इट्स नॉट सेफ एक्चुअली. सो प्लम का ग्रीन टी face scrub it is. I love their face wash. I have it, like you can see. I just love this face wash. It's really good. I usually use it जब मैं मेकअप करती हूँ उसके बाद, मेकअप रिमूव करने के बाद, because it just cleans out my pores and everything. So I really like that and I'm so excited to try out the face scrub. And by the way, I have a like entire dedicated review on a lot of Plum Goodness products. मैं उनको description box में link कर दूँगी. So make sure to check them out. Plum products are cruelty free, certified by PETA and they are vegan, which is good. And इसलिए हर कोई यूज कर सकता है इनको, irrespective of आपके क्या preferences है, क्या choices है. So this is the texture of the scrub. आप देख सकते हो the particles are really fine and right now I don't feel कि ये बहुत ज़्यादा harsh होंगे skin पे. And I love the fragrance. बहुत ज़्यादा refreshing fragrance है, just perfect for summers. So I'm just going to rub it all over my face for good 1 minute, especially on my problem areas, which is like यहाँ पर बहुत ज़्यादा build-up होता है and on my forehead. So and I think I look good. Skin already, like I can feel my skin has softened up and अभी मैं फटाफट से इसको wash off कर दूँगी. Okay, let me just show you up close. My skin looks so much cleaner and बहुत less texture feel हो रहा है. I feel really nice and smooth right now. Well, जो scrub particles थे ना, they were really fine and आपको बहुत ज़्यादा harsh नहीं होना आपकी skin पे. Just be gentle and सब कुछ clean up कर देगा. Alright, so the next thing that I'm going to use on my face is the Plum Green Tea Face Mask. This is one of my favorite masks. I love using it. It looks like it just feels amazing on the skin. So I'm just going to apply a little bit नहीं, एक अच्छी सी even सी layer अपने face पे मैं apply करूँगी इसकी. And I'll just leave it for around 10-15 minutes या फिर जब तक ये सूखता नहीं है. And जैसे ये सूख जाएगा हम इसको wash off कर देंगे. मुझे फेस मास्क इसलिए पसंद है, जस्ट क्लीन्स आउट योर पोर्स, सब कुछ निकाल देता है. इनफैक्ट आपके फेस पे जो ऑयल वगैरह भी होता है, एक्सेस ऑयल, उसको भी ये रिमूव करता है. सो इफ यू आर गोइंग टू अ पार्टी और अ वेडिंग फंक्शन, जस्ट अ 2-step प्रोसेस, क्विकली क्लीन अप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका एंड यू आर रेडी फॉर सम अमेजिंग मेकअप एंड सम अमेजिंग आउटफिट. सो आई विल जस्ट कीप इट फॉर 10-15 minutes and then I'll come back and wash and reveal my final skin. Okay guys, it's almost dried out. I can't even speak. And now I'm just going to remove it. उसके लिए I'm just going to take a sponge pad. इसको गीला करके I'll just
रब इन सर्कुलर मोशन और ये बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगा। द रीज़न आई डू दिस वे क्योंकि ना यू डोंट एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ वाटर एंड अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। देयर इज़ नो प्लेस जहाँ से आपका मास्क जो है रिमूव ना हुआ हो एंड इट जस्ट क्लीन्स आउट योर स्किन ऑल्सो। माई स्किन फील्स सो सॉफ्ट, सो स्मूथ, सो काम, एकदम एक ठंडक ठंडक सी स्किन को मिल गई एंड ऑल्सो लिटिल बिट टाइट बिकॉज ऑफ द क्ले मास्क। बट आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट वाइप ऑफ माई फेस एंड देन शो यू माई एग्जैक्ट स्किन। देखो भाई, क्लोजअप में देख लो अच्छे से। इट्स नाइस एंड क्लीन, यहाँ पर कितना कुछ था, इट्स नाइस एंड क्लीन। एंड लास्ट में लगा लूँगी प्लम का नाइट क्लैरिटी जेल जस्ट टू हाइड्रेट माई स्किन अ लिटिल बिट। दो इसको आपको नाइट में यूज़ करना है बट आई एम जस्ट स्टिल गोइंग टू यूज़ इट। ये बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र है इफ़ यू हैव ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन, क्योंकि तब आपको ना यू डोंट वांट टू हैव दैट एक्स्ट्रा इमेंस वाला हाइड्रेशन, यू वांट समथिंग विच इज़ लाइट ऑन योर स्किन एंड दिस इज़ एग्जैक्टली दैट। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी एसिलस नहीं है, इसमें कोई पैराबेन नहीं है, इसमें कोई सिलिकॉन नहीं है, बिकॉज सिलिकॉन इज़ वन इंग्रेडिएंट जो कि मुझे अभी रिसेंटली पता चला आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ड्राई आउट कर देगा अगर आप उसको रेगुलरली यूज़ करो। सिलिकॉन इन योर स्किन केयर is going to dry out your skin. So even if you have oily skin over a period of time, it will turn out to be dry. So avoid silicones in products, in skincare at least. And this doesn't have any of those and I like it. सबसे अच्छी चीज़ ना मुझे इसकी fragrance लगी है. It's very refreshing and it's not too much. It's like the right amount. This moisturizer, like this gel, is very very lightweight and just gets absorbed into the skin very quickly, and that's my skin up close. So highly recommend Plum के green tea product. If you have oily or combination skin, do try it out, you will love it. My favorite from the range has to be the face mask. The scrub is also very good, just cleans out your skin एकदम pores तक जा करके. So I really like it and I love how my skin feels. ये gel ना, it's like nice and hydrating, yet it's not that greasy वाली feeling नहीं है, which is all we need summers में, right? So I mean like that's me. Our mask is nice and clear and मैं फटाफट से अब अपने फेस को वॉश कर लूँगी. गाइज डुगू की क्लासेस चल रही हैं अच्छे वहाँ पर. सो ये वाला पोर्शन जो है आई विल प्रॉब्ली वॉइस ओवर, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि मैं अपनी नेक के लिए क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ. सो आई विल जस्ट डू माई थिंग एंड आई विल डू अ वॉइस ओवर. ठीक है. ऑल राइट यू गाइज, तो स्टार्ट ऑफ करेंगे बेसिक नेक एक्सरसाइज से, विच इज़ जस्ट मूविंग योर नेक अप एंड डाउन. इससे क्या होगा, नेक की जो मसल्स है ना वो थोड़ी रिलैक्स फील होंगी, थोड़ी सी स्ट्रेच भी होंगी. सो उनको जिनको नेक में बहुत पेन रहता है ना, सर्वाइकल वाला पेन कह सकते हो आप, दे शुड रेगुलरली सुबह शाम ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए. सो जस्ट आप अपनी नेक की मसल्स की मूवमेंट बढ़ा रहे हो, स्टिफनेस आ जाती है, उसी वजह से बेसिकली हमको दर्द होता है. सो मैंने पहले नेक की मूवमेंट करी, आपको 10 टाइम्स करना है ये, मैं कट शॉर्ट करके दिखा रही हूँ. देन मैं शोल्डर मूवमेंट कर रही हूँ, बिकॉज नेक और शोल्डर आपको रिलैक्स करना है, लूजन अप करना है. सो इस तरीके से आप नेक की मूवमेंट करोगे ना. दिस एक्सरसाइज इज़ ग्रेट अगर आपको बैक पेन रहता है. तो इसमें क्या करना है, आपको अपने बैक को ऐसे स्लाउच करना है एंड देन आप अपनी बैक को पूरा स्ट्रेच आउट कर लेते हो. इससे अगेन बैक की हम मूवमेंट बढ़ा रहे हैं. हमें ज़्यादातर पेन जो है वो स्टिफनेस की वजह से ही आता है. सो ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी स्टिफनेस को लूजन करने में हेल्प करेगी और आपको ये बिना स्किप किए हर रोज़ करनी है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है करने का. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज स्ट्रेचिंग माई अपर बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी. जब मैं हैंड्स ऊपर लेके जा रही हूँ ना, मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी ही कर रही हूँ.
नेक्स्ट दिस एक्सरसाइज आई लाइक टू डू बिकॉज इससे मेरे शोल्डर और हैंड स्ट्रेच होते हैं। एंड अगेन आपको ये कम से कम 20 से 25 टाइम्स करनी है। एंड कोशिश करना है कि बिना अपनी नीज़ को फोल्ड किए आप अपने टोज़ को टच कर रहे हो, ठीक है। तो 20 से 25 बार और ज़्यादा बार भी कर सकते हो। अगेन आई एम स्ट्रेचिंग माई होल बॉडी अप ऊपर की तरफ में। एंड देन मैं इसको क्या कहते हैं मेरे को इस योगा आसन का पता नहीं, बट आपको इसमें अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना। अगेन इसमें जो है आपकी बैकबोन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। ऑल दीज एक्सरसाइजेज आर वेरी 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 रिलैक्सिंग। आपको करने के बाद ना बहुत अच्छा और लाइट फील होगा। सो मैं अपनी बॉडी को पहले लाइक हैंड्स को ऊपर लेके जा रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, एंड देन आगे की तरफ में अपने आप को पुश कर रही हूँ। पूरा का पूरा बॉडी को आप देख रहे हो जैसा, उस तरीके से आगे लेकर आती हूँ। बैक के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बैक की क्या कहते हैं उसको, इलास्टिसिटी को बेटर करेगा। थोड़ा सा हैंड मूवमेंट कलाइयों के लिए, बिकॉज अगेन द होल पॉइंट ऑफ दिस रूटीन इज़ कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, मूव करो, बेसिकली स्ट्रेचिंग ऑन अ हायर नोट एंड मूवेबिलिटी, आपकी बॉडी की बड़े स्टिफनेस जो है वो कम हो। मैं शोल्डर मूवमेंट के लिए कर रही हूँ, मेरे को शोल्डर में भी बहुत पेन रहता है, लेफ्ट शोल्डर में स्पेसिफिकली। नाउ दिस इज़ कॉल्ड गौमुख आसन, वेरी गुड फॉर अ होल बॉडी स्ट्रेच। लाइक अपर बॉडी आपकी कंप्लीटली स्ट्रेच हो जाएगी। तो एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा और हैंड्स जो मेरे पीछे है ना, आई एम ट्राइंग टू टच बोथ माई हैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ के साथ आपको अपना पॉस्चर जो है वो स्ट्रेट मेंटेन करना है। ऑल्सो ब्रीद करते रहना पूरे टाइम, क्योंकि कई बार क्या होता है सांस रोक लेते हैं हम, वो नहीं करना है। यू हैव टू कीप ऑन ब्रीदिंग, ध्यान रखना, दिमाग में रखना कि मुझे ब्रीद करते जाना है। आप गौमुख आसन के आराम से 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके शोल्डर, आपकी बैक, आपकी नेक सबको स्ट्रेच कर देता है। दिस इज़ अनदर आसन दैट आई डू, और ये भी फुल बॉडी स्ट्रेच के लिए है। इसमें क्या है, एक पैर मैंने 90 डिग्री पे निकालती हूँ एंड देन आई ट्राई टू टच इट। उसके बाद दूसरे हैंड से मैं अपने ओवर द हेड लेके जाती हूँ। उससे क्या होगा, मेरी जो कमर कह सकते हो, जो साइड है, जो लव हैंडल्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं। एंड उसके बाद उस रखना, इस पोजीशन में अपने आप को रखना फॉर गुड 1 मिनट और 30 सेकेंड्स। उससे क्या होगा, आपकी ये जो साइड्स हैं वो स्ट्रेच होंगी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे ना वो भी काफ़ी टाइट हो रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ आई डू इट। मैंने साइड से भी आपको दिखाया। एंड देन थोड़ी देर के बाद जब आपको फील होने लगे ना वो बर्निंग सेंसेशन, जस्ट टच योर टो विद बोथ योर हैंड्स। ट्राई करो, मेरा भी एक ही से होता है, बट आई नो मैं धीमे धीमे करके हो जाएगा। एंड देन दिस इज़ अनदर अमेजिंग एक्सरसाइज फॉर नेक। जिनको नेक पेन रहता है, आपको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना, बस पालती मार के साइड में अपने हेड को हल्का सा पुश करना। अगर आप ज़्यादा पुश करोगे, देखो लिगामेंट टेयर हो जाएगा। सिर्फ उतना जितना आप बेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको स्ट्रेच फील होगा अपने अपर बैकबोन में, बस उतना हल्का स्ट्रेच। हमें कोई भी चीज़ ना ओवर द टॉप जाके नहीं करनी है। ओके, सो 10 के अराउंड बज चुका है। मैंने रोटी सेक दी है, दाल वाल छौंक दिया, बिकॉज लंच टाइम पे मैं होंगी नहीं ना, तो आशू, डुगू, पापा जी जो है वो आराम से अपना लंच कर पाएंगे। मम्मी भी नहीं होंगी, मम्मी एक्चुअली स्कूल गई हुई हैं, और मैं भी बस अभी 11:30 तक निकल जाऊंगी। सो लंच इज़ रेडी, ये लोग कर लेंगे। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द शावर। ऐसा डांस भी होता है फोर्टनाइट वाला। क्यों रिकॉर्ड कर रहे तुम? व्लॉग में डालो प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है। इतना शाय क्यों होते हैं? चलो 10 बज गया बेटा। 10:30 पे है। तुम्हारी भी है टोन। तो लाइक फादर लाइक सन। नो मर्सी डुगू, नो मर्सी। बस हो गई नो मर्सी। भैया चोट लग जाएगी, लैपटॉप रखा। हाँ ठीक है माफ कर देते सब इतने गमगीन गाने का थोड़ा हैप्पी सॉन्ग्स बजाओ ना। ये गमगीन सॉन्ग है। क्यों, कैसा सॉन्ग है फिर? दिस इज अ लेजेंडरी सॉन्ग।
तो ऐसे आराम मिलता है ना। लेजेंडरी होना एक चीज होता है, बस तुम्हें एक ही गाना आता है और कॉर्ड चेंज भी कर दिया ना। ये क्या था? क्या? बुक्स मैंने ले ली हैं अभी। अच्छा, बड़े बच्चों की क्लासेस चल रही हैं। हाँ, बुक्स मैंने ले ली हैं, लाइक पहले ही ले गए थे। एक बुक ना रह गई थी तो वही लेने आई थी। एज अ पेरेंट आई फील ना, कई बार वी हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक मैनी एज अ पेरेंट, एवरी पेरेंट हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड समटाइम मेरे को लगता है कि अमिस्ट एवरीथिंग मैं कई बार आई एम नॉट एबल टू डू इनफ फॉर डुगू। सो या, जस्ट लाइक अ पेरेंट गिल्ट कह सकते हो। जाम में फंसे हैं अभी। जहाँ में जाना था वहाँ के लिए लिटरली सिर्फ 15 मिनट का रास्ता रह गया है और 19 मिनट से, लाइक 20 मिनट से मैं जाम में फंसी हुई हूँ। एंड यू नो, जब हम इतनी दूर दूर आते हैं, लाइक ये मेरे घर से ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर्स दूर है ये जगह। एंड जब भी आप इतनी दूर आते हो तो यूजली रहता है कि जाम वाम ना मिले तो फटाफट से हम पहुँच जाएँ, बट ऐसा कम ही होता है कि हमें बिल्कुल जाम ना मिले और मैं एकदम सरपट दौड़ती हुई चली आऊँ। So guys, a sneak peek time. Actually, these are the new shades of liners, like mix है new and old के, and I'm so excited for these. I am almost on my way home, but मेरे को अनिंदिता से थोड़ा सा काम था, so I am actually at her place right now, just climbing the stairs, and I just have to quickly give her something, take something from her. So yeah. Okay guys, I've come to the store just to check on the progress. अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ पेंट हो रहा है अभी, एंड इंटीरियर्स अभी होना है। वी कैन नॉट डिसाइड ऑन कि इंटीरियर्स हमें क्या कराना है क्या नहीं कराना। इट्स अ हैसल एक्चुअली टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट यस, लेट्स होप हम 16 तक ओपन कर पाए। आई डोंट थिंक वी कैन डू इट अंटिल 16 बिकॉज बहुत काम है, एंड आई थिंक इट वुड शिफ्ट अंटिल द एंड ऑफ अप्रैल, सो लेट्स सी। ओके गाइज, सो आई एम बैक होम। डिनर हो गया है। डिनर करके मैं एक्चुअली शॉप पे गई थी, पेंट हो रहा है उसको देखने के लिए, एंड उसके बाद जो है मैं थोड़ा दाल वगैरह लेने गई थी। सो आई जस्ट केम बैक होम एंड या, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स हाउ नॉर्मली डेज आर। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये शैतान बच्चा मुझे परेशान कर रहा है शैतान बच्चे गोलू मोलू। So that's it for this vlog. I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.